یہ منظر ہے لاہور کے بازار حسن کا، جہاں کے دن تاریک اور رات میں بازار کی رونقیں عروج پر ہوتی ہیں۔ ہر سو شراب اور شباب کی محفلیں سجی ہوتی ہیں۔ پیروں میں بجتے ہوئے گھنگروں کی چھنکار آنے والے ہوس کے پجاریوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے۔ اس بازار میں ایک کمرہ ایسا ہے جس میں زمین پر لیٹا سسکتا وجود اپنی موت کو آوازیں دے رہا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے اس ذلت بھری زندگی سے نجات دلا، میری عزت کی حفاظت فرما۔ روتے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کے حضور عرض کر رہی تھی، پر کیا قدرت اس پر رحم کرنے والی تھی یا پھر ذلت بھری زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی؟ اسی لمحے تمنا بیگم کمرے میں داخل ہو۔ چل اٹھ میری بلبل، تیری اڑان کا وقت آ گیا ہے۔ ثنا، کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ۔ بلبل، نہیں، میری سونے کی چڑیا کو تیار کر دو، آج اس سے وصولی کا وقت آ گیا ہے۔ اسی لمحے ایک انتہائی ماڈرن لڑکی کمرے میں داخل ہو، اور ہاں، اسے تیار اس انداز میں کرنا کہ تماش بین اس کی زیادہ سے زیادہ بولی دے۔ تمنا بیگم اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ یہ سنتے ہی ہانیہ کا دل لرز گیا۔ نہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کریں، مجھے جانے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ایسے کیسے جانے دے میری جان؟ چلو اسے جلدی سے تیار کرو، ناگواریت سے کہتے ہوئے تمنا بیگم کمرے سے باہر چلی۔ دیکھو، تم میری مدد کر دو، ہانیہ نے میک اپ کرنے والی لڑکی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، لہٰذا تم خاموشی سے بیٹھے رہو تاکہ میں اپنا کام ختم کر کے یہاں سے جا سکوں۔ اس کا رونا دھونا، چیخنا چلانا سب بے معنی تھا۔ کاش اس نے اشر پر اعتبار کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیا ہوتا۔ پتہ نہیں اس کے ماں باپ اور بھائیوں پر کیا گزر رہی، کیسے وہ دنیا والوں کا سامنا کرے گی۔ حالم طاہرانہ نظر ڈالتا اندر آیا تو دوشیزہ رقص کر رہی تھی۔ ایک دم جلتی روشنیوں میں رقص کرتی حسینائیں، ارد گرد اندھیرا، ان پر روشنیاں جل بجھ رہی تھی۔ کیا خوابناک ماحول بنا رکھا تھا۔ وہ حال میں اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہو گیا اور پرسکون چہرے پر گہری سنجیدگی لیے حال کے وسط میں بیٹھی حسن کے شاہکار پر گہری نظر ڈالے ہوئے۔ یہ ہانیہ تھی جسے حالم بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ دکھنے میں حالم بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ دراز قد، گندمی رنگت، سیاہ روشن آنکھیں جن میں بلا کی سنجیدگی، کندھوں پر کالی چادر لیے وہ کسی رئیس زادے سے کم نہیں لگ، مگر اس کا دل اس حسن کی مورتی میں اٹک گیا۔ کالے لمبے بال جو کمر سے نیچے جا رہے تھے، کالی سحر انگیز آنکھوں پر گھنی پلکوں کی جھالر تھی، دودیا رنگت، سرخ رنگ کی لپسٹک سے پوشیدہ نازک لب، مہارت سے کیا گیا میک، تالی بجا کر حال میں موجود تماش بینوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بولی، شروع کیجئے۔ ویسے تو حالم کی موجودگی میں ہمیں بولی کی ضرورت پیش نہیں آتی، پر کیا پتہ آج کوئی محفل میں ان کی ٹکر کا آدمی موجود ہو جو ان سے زیادہ بولی لگا کر اس قیمتی نگینے کو کنیز بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ تمنا بیگم، حالم کی گرجدار آواز ایک لمحے کے لیے پورے حال میں سکوت پیدا کر گئی۔ حالم نے اپنی چادر شانوں سے اتارتے ہوئے ہانیہ کی طرف پھینکی، جو اس نے تیزی سے تھامتے ہوئے اپنے ارد گرد پھیلا دی۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی مضبوط سائبان کی پناہ میں آ گئی ہو۔ یہ لیں، آپ کا بلینک چیک، حالم نے چیک اپنی جیب سے نکالتے ہوئے کہا، اور مجھے امید ہے کہ اس سے زیادہ قیمت اور کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے حالم آگے بڑھا اور کسی کنیز کی طرح اس کا بازو دبوچتے ہوئے باہر کی جانب چل دیا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہ کہتے ہوئے حالم آگے بڑھا اور کسی کنیز کی طرح اس کا بازو دبوچتے ہوئے باہر کی جانب چل دیا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حالم بغیر بولی کے کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ کیا تھا اس لڑکی میں؟ بس ذرا سی خوبصورتی ہی تو تھی۔ اوفو، تمنا بیگم، تمہیں کیا؟ تم آم کھاؤ، گھٹلیوں سے تمہارا کیا واسطہ؟ یہ کہتے ہوئے تمنا بیگم اپنی مرضی کی رقم چیک میں لکھنے لگی۔ حالم کے پاس گاڑی موجود تھی، مگر وہ بجائے گاڑی میں جانے کے پیدل ہی جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، وہ سڑکوں پر اسی طرح سے مجھے گھسیٹتا رہا۔ ٹھوکریں لگنے سے پیر سے خون رسنے لگا۔ عالم کی دی ہوئی چادر سر سے لٹک کر کندھوں پر آ گئی۔ مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا۔ تکلیف کے مارے میری جان نکل۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ چلتے چلتے رکا اور تیزی سے میری جانب بڑھا اور میرا منہ دبوچتے ہوئے گررایا۔
क्या तुम्हें गोद में ये तो नहीं कहा? असल में मेरे पाँव से बहुत खून निकल रहा है। मैंने अपने पाँव की तरफ इशारा करते हुए कहा। अभी ये कहने की देर थी कि वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा और पूरी कुव्वत से ज़ख्मी पाँव को दबा दिया। मैं ज़ोर से चिल्लाना शुरू हो गई। जितनी ज़ोर से मैं चीख रही थी वो उतनी ही ज़ोर से कहका लगा रहा था। उसके कहकों की आवाज़ इतनी शदीद थी जैसे बिजली की कड़क हो। जैसे ही उसने अपनी आंखें ऊपर की तो वो बिल्कुल सफ़ेद थी, स्याह लिबास में मलबूस वजूद और ऊपर से उसकी सफ़ेद आंखें। दहशत के मारे बेहोश हो गई। जैसे ही हानिया बेहोश हुई, जनजादे ने उसे अपनी बाहों में उठाया और पूरी सरार हवेली में गुम हो गया। आधी रात का वक्त था। हवेली के चारों तरफ खामोशी छाई थी। चांद की रोशनी भी ना होने के बराबर थी। हवेली के चारों तरफ जंगल था। कहीं ना कहीं से जानवरों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी जो माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। कमरे में गुप अंधेरा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म पर कोई चीज़ रेंग रही है। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की मगर बेसुध। काफ़ी देर तक उसी हालत में लेटी रही। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरा सारा बदन दर्द से चूर था। मेरे हाथ और पाँव पर किसी के खुरचने के निशान थे। मैं परेशान हो गई। ये कैसे निशानात थे और मेरे हाथों और पैरों पर कैसे आए? क्या पता हालिम ने किया हो। वो भला मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? ये सोचते ही मैंने सारी रात गुजार दी। मेरा नाम हानिया है। मेरा ताल्लुक लाहौर के मुतवस्सित घराने से था। अब्बू सरकारी महकमे में अच्छे ओहदे पर फाइज थे। मेरी वालदा गवर्नमेंट टीचर थी। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरे अलावा मेरे 2 भाई और भी थे। बड़ा भाई जैन जो कि MBBS के दूसरे साल में था। उसके बाद मेरा नंबर था। मैं यूनिवर्सिटी में BS की स्टूडेंट थी। छोटा मेरा भाई हमजा जो इंजीनियरिंग के पहले साल में था। हमारे को मेरे बेजा लाड उठाने से मना करती। बड़े भाई सुबह मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देते और वापसी पर मैं खुद घर आ जाती। यूनिवर्सिटी में अशर नामी लड़का इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होकर आया था। हमारे घर का माहौल आज़ादाना नहीं था। मैं भुरके में यूनिवर्सिटी आती जाती। अशर बहाने बहाने मुझे मुखातिब करने की कोशिश करता मगर मैंने कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। एक दिन जब मैं यूनिवर्सिटी से घर वापस जा रही थी, चंदोबाश लड़कों ने मेरा रास्ता रोक लिया। उनमें से एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। न जाने अशर कहाँ से दरमियान में आ गया। उसे देखते ही वो लड़के फ़ौरन रफू चक्कर हो गए। वो मेरे पास आया, ज़मीन पर गिरी हुई बुक्स उठाकर मुझे थमाते हुए बोला, आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ। मैंने अपनी चादर से पेशानी पर आया पसीना साफ किया। मैं आपको घर तक छोड़ दूँ? नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। ये कहते मैंने रिक्शा लिया और घर आ गई। सारा दिन मुझे यही फिक्र, मैं आपको घर तक छोड़ दूँ? नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। ये कहते मैंने रिक्शा लिया और घर आ गई। सारा दिन मुझे यही फिक्र सताती रही कि अगर वो बरवक्त ना पहुँचता तो न जाने वो लड़के मेरे साथ क्या सलूक करते। अब अक्सर अशर से यूनिवर्सिटी में बातचीत होने लगी और अक्सर हम यूनिवर्सिटी से बाहर रेस्टोरेंट में मिलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी पसंदीदगी मोहब्बत में बदलने लगी। एक दिन अशर कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी वालदा से मिलवाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? अशर, मुझे यूनिवर्सिटी के किसी दोस्त के घर जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया। हम यूनिवर्सिटी ऑफ होने से पहले ही वापस आ जाएंगे। मेरी अम्मी बीमार है, वो अच्छा महसूस करेंगी। अगर तुम उनकी इयादत करने जाओगी तो। अशर ने बेबसी की हालत में कहा। मैं अशर की बातों में आ गई और अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोली, ठीक है चलते हैं, और प्लीज़ मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ होने से पहले ही वापस छोड़ देना। ये क्या? घर चलिए। जैसे ही अशर ने अपनी बाइक गली के सामने खड़ी की तो मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। ये कैसा मोहल्ला है? दिखने में वो मोहल्ला बड़ा अजीब लग रहा था। लोग हवसपरस्त नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। अशर, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने डरते डरते अशर से सवाल किया। छोड़ो तुम इन लोगों को। ये कहते हुए वो मुझे अपने घर ले गया। यहाँ मौसीकी का सामान देखकर एक लम्हे के लिए मैं दंग रह गई। मुझे किसी गलत जगह पर तो नहीं ले आया? ये सब क्या है? मैंने उन चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अभी वो बताने ही वाला था कि कमरे से एक दरमियानी उम्र की औरत बाहर आई। उसने सुर्ख रंग की साड़ी से तन की हुई थी। लिपस्टिक लगाए वो काफ़ी हद तक मॉडर्न नज़र आ रही थी। तुम्हारी अम्मी तो बिल्कुल ठीक है और ये कहीं भी जाने के लिए तैयार है। मैंने अशर की तरफ परेशानी से देखते हुए कहा। आ गए अशर? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी।
तमन्ना बेगम ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, ये है गौहर नारे नायाब जिसका तुम जिक्र कर रहे थे। वाह, क्या हीरा मिला है तुम्हें। ये तो मेरे लिए सोने की चिड़िया साबित होगी। ये तुम्हारा 1 लाख। उसने नोटों का बंडल अशर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अशर, ये सब क्या है? मैंने रोते हुए सवाल किया। ये तुम्हारी मोहब्बत की कीमत है मेरी जान, जो तुम मुझसे करती हो। ना ना ना, बल्कि तुम नहीं, मैं तुमसे करता हूँ। वो खबासत से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। देखो, मेरे साथ ऐसा धोखा ना करो। मैंने उसका बाजू पकड़कर रोकने की कोशिश की। मेरे माँ और बाप का सोच लो, वो मेरे बगैर मर जाएंगे। अब यही तुम्हारे घर वाले हैं। नए घर वाले मुबारक हो मेरी जान। ये कहते हुए वो बाहर की जानिब चल दिया। हानिया रोते हुए उसके पीछे दौड़ी। मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ। शहबाज, शहबाज, इस बुलबुल को कमरे में ले जाओ, इसका दिमाग दुरुस्त करो। तमन्ना बेगम के अकब में शहबाज नमर हुआ और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले जाकर रस्सियों से बांध दिया। अचानक हालिम की आवाज़ मुझे माजी से हाल में ले आई। उठो, तुम्हें इधर सोने के लिए नहीं लेकर आया। मैं जल्दी से बेदार हुई और यकदम खड़ी हो। पाँव की तकलीफ के मारे मेरे मुंह से चीख निकल, जिसे मैंने अपने हाथों की मदद से रोकने की कोशिश की। चलो मेरे साथ। मैं डर के मारे उसके पीछे चलने लगी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो मैं हैरान रह गई। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत हवेली कभी नहीं देखी थी। सफ़ेद रंग की हवेली में गोल्डन रंग के खूबसूरत पर्दे लटक रहे थे और गोल्डन कलर का खूबसूरत फर्नीचर हवेली के हुस्न को 4 चांद लगा रहा था। मैं खामोशी से हालिम के पीछे जा रही थी। उसने मुझे एक खूबसूरत सहन में लाकर खड़ा कर दिया। ये तुम जो सहन देख रही हो, अपनी उंगली की मदद से इशारा करते हुए कहा। 12 बजे से पहले इसकी सफाई करनी है। मैंने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। वक्त पर काम ना हुआ तो तुम जानती हो कि मैं कैसी कैसी सजाएं देता हूँ। उसने मेरे पैर की तरफ इशारा करते हुए और बाहर की जानिब बढ़ गया। मैं एकदम बौखला गई और बौखलाए हुए अंदाज में चारों तरफ चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के अलावा कुछ नहीं था। हद्दे निगाह कोई वजूद नजर नहीं आ रहा। हर तरफ दरख्तों के खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। मैं लंगड़ाते हुए झाड़ू की मदद से पत्ते इकट्ठे करने लगी। जब मैं दरख्त के नीचे पहुंची तो सांस लेने की गर्ज से कुछ लम्हों के लिए बैठ गई। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरी झोली में यकदम 2 फूल आ गिरे। मैं तेजी से खड़ी हो गई। इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था। दरख्त पर देखा तो वहां पर फूलों का कोई नामो निशान नहीं। मैं खौफजदा हो गई। अचानक मेरे कानों में एक नरम सी सरगोशी सुनाई दी। शुक्रिया तुम्हारा, मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। ये कैसी आवाज़ थी? मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगी। मैं दरख्त के नीचे से उठी और जल्दी से सहन साफ करने मेरा सीना फूल रहा था, सांस भी तेज थी। बात ही इतनी अजीब थी। मुझे अपने कानों और आंखों पर पूरा भरोसा था। मैंने साफ तौर पर पहले फूल और फिर शुक्रिया वाले अल्फाज सुने थे। काफ़ी देर तक मैं उसी तरह खड़ी खौफ से कांपती रही। फिर अचानक मेरी निगाह सहन में लगे हुए बड़े से घड़ियाल की तरफ गई। 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे और काम भी वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका था। बदन में हल्की हल्की सी कपकपाहट था। मैंने गिरे हुए फूल जल्दी से चादर के नीचे छुपाए। कमरे में आ गई। फूलों को साइड टेबल की दराज में छुपाया और वॉशरूम की जानिब चल ठंडे पानी से मुंह धोने लगी। ठंडे पानी के छींटों ने मेरे चेहरे टिमटिमाहट को बड़ा सुकून दिया। काफ़ी देर तक आंखों को पानी से नम करती रही। ताज़ा दम होकर बाहर सहन में आ गई। 12 बजे थे। हालिम दोबारा सहन में आया। हैराना निगाह सहन पर दौड़ाई। मेरे लिए चाय बनाकर हाल में ले आओ। इस बात में सर हिला। मुझे देखते ही वो चूल्हे के पास से हट गई। ये बात मेरे लिए हैरत का बायस थी। मालिक से लेकर खादमाओं तक सबने स्याह लिबास से तन रखा। सिर्फ वाहिद में थी जिसने लेमन कलर का सूट पहना था। बावर्ची खाने की गर्मी में मेरा चेहरा टिमटिमा रहा था। खुश्क होंठ, सुर्ख चेहरा। इस अदा में वो बेहद हसीन लग रही थी। जैसे ही वो चाय लेकर हाल में दाखिल हुई और चाय टेबल पर रख दी, वो वापस जाने के लिए मुड़ी। हालिम ने उसे आवाज़ दी, सुनो, इधर आओ, यहाँ आकर बैठो। सोफे के करीब नीचे ज़मीन पर इशारा करते हुए कहा। मैं खामोशी से सोफे के करीब ज़मीन पर बैठ गई। पहले तो वो मेरी तरफ बड़ी गौर से देखता रहा, फिर न जाने उसके दिल में क्या समाया और मेरा हाथ थाम लिया। मैं हैरानगी से उसकी जानिब देखने लगी और सोचने लगी, न जाने अब वो मेरे साथ क्या करने वाला।
अपने दूसरे हाथ पर पकड़ी हुई चाय उसने मेरे हाथ पर फेंक दी। मैं दर्द से बिलबिला उठी, मगर वो सख्ती से मेरा हाथ दबोचे आराम से सोफे पर बैठा रहा। तकलीफ से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं डबडबाती नजरों से उसकी तरफ देखने लगी, फिर मेरा हाथ छोड़ते हुए वो हाल से निकल गया। कई लम्हे ऐसे ही बीत गए। मैं उसी कैफियत में बैठी रही। अम्मा बी, हालिम के जाते ही फौरन से वो हाल में आई। क्या हुआ? मेरी बच्ची ऐसे क्यों बैठी हो? मैं हैरानगी से उस बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगी। मैं इस हवेली की मुलाजमा हूँ, मगर हालिम मुझे अपनी माँ का दर्जा देता है। मैंने खामोशी से अपना हाथ अम्मा बी के आगे कर। आज फिर नया जुल्म। पता नहीं हालिम का रवैया तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है। इस हवेली में हजारों लड़कियां आती हैं, मगर आज तक मैंने किसी से ऐसा सलूक करते नहीं देखा। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे हाथ पर लगाने के लिए कोई मरहम लाती हूँ। रहने दे अम्मा। ये कहती मैं खामोशी से कमरे में चली। इसी तरह शाम से रात हो गई। इसी दौरान अपनी तकलीफ की बिना पर सब कुछ भूल गई। दाली फूल, कोई बात मेरे जहन में नहीं। एक गहरा सांस लिया, बेड से उठकर आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। कभी अपने हाथ को देखती और कभी अपने आप को। उस वक्त मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, सबर मेरी जान। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने गौर से दरख्त वाली आवाज़ सुनी और अब वो बिल्कुल उसके मुशाबा थी। एक लम्हे के लिए मैं चकरा गई और गिरते गिरते बची। किसी ने उसे अपने बाजू में थाम लिया, मगर कौन था वो? और उस वक्त उसने आवाज़ के साथ उसका लम्स भी महसूस किया। हाँ, कौन हो सकता है मेरे अलावा? शायद मैं पागल हो गई हूँ। अचानक उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी तो वहाँ से एक घेवला सा नजर आया। मैं भागकर खिड़की के पास आई। कौन हो तुम? मगर वहाँ कोई नहीं था। रात गहरी हो गई थी। अंधेरा होने के बायस मुझे कुछ नजर नहीं आया। हालिम जो कि अपनी ख्वाबगाह में था, उसके उधर आने के इम्कान कम थे। मैं ऐसे ही बिस्तर पर लेट गई। अचानक उसके जहन में फूल का ख्याल आया। वो अपनी तकलीफ को यकसर बुलाए दराज की जानिब बढ़ी और फूल निकाल कर सौंगने लगी। अचानक मुझे प्यास महसूस हुई। मैं बेड के साइड टेबल पर रखे गिलास को देखकर हैरान रह गई। मैंने तजस्सुस के मारे गिलास उठाया तो उसके अंदर शरबत था। मैं खौफजदा हो गई और गिलास दोबारा से टेबल पर रखने लगी। अचानक से मेरे कानों में सरगोशी सुनाई दी। हानिया, ये शरबत पी लो। अनजानी कुव्वत के साथ वो गिलास खुद बखुद मेरे होंठों तक आ गया, जैसे कोई प्यार से मुझे शरबत पिलाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने शरबत पीने के लिए लब खोले तो जैसे गाढ़े शरबत से दिल फरेब खुशबू उठ रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, गिलास मेरे मुंह से उस वक्त हटा जब तक वो शरबत ख़त्म नहीं होगी। इतना खुश जायका शरबत मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं पिया था। शरबत पीते ही मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरा जिस्म फूल की तरह हल्का हो गया। पूरे बदन में खुशगवारी सी कैफियत पैदा हो गई और मुझे हाथ की तकलीफ भी किधरे कम महसूस होने लगी। मेरी आंखें बोझल होने लगी। मैं बार बार अपना सर झटकने लगी, लेकिन नींद मुझ पर इस कदर गालिब आई कि तकिए पर सर रखते ही फौरन सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, हल्की सी ज़र्ब मेरे जहन पर लगी। ये क्या? मेरे हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और पाँव पर मरहम लगी हुई थी। मैं सोच ही रही थी कि अचानक मेरी निगाह सामने लगी क्लॉक पर पड़ी। हालिम ने सुबह 4 बजे उठने का कहा था, मगर अब तो यकीनन 7 बजे का वक्त था। सोचते ही मेरे हाथ पाँव फूल गए। आज ज़रूर हालिम के हाथों मेरी मौत पक्की है। अगर उसे वक्त पर नाश्ता नहीं मिला तो सचमुच में वो मुझे खा जाएगा। फिर एक लम्हे के लिए ये सोच उसके जहन पर आई। तेज़ी से बेड से उठी। मेरे अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर। उसके अलग से रुंधी हुई आवाज़ निकली। जल्दी से वॉशरूम की जानिब दौड़ी, उल्टे सीधे छींटे मारे और किचन में आ गई। जैसे ही किचन के अंदर कदम रखा, पाँव अपनी जगह पर जम गए। हाथ पाँव खौफ के मारे फूल गए। न जाने किसने नाश्ता तैयार किया था। अगर हालिम को पता चल जाता कि ये नाश्ता मैंने नहीं किसी और ने बनाया है, वो मेरे सारे बाल नोच डालेगा। मेरा खाना पीना सब बंद हो जाएगा। फिर वो मुझे नई सज़ा देगा। क्या पता अम्मा बी ने बना दिया हो। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि अम्मा बी किचन में दाखिल हुई। हानिया, साहब टेबल पर आ गए, नाश्ता लगा दो। मैंने इस बात में सर हिलाया और सारी चीज़ें ट्रॉली में से जाकर सहमे कदमों से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे किसी मुजरिम को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा। नाश्ते की टेबल पर हालिम मौजूद था। मैं नज़रें झुकाए कांपते हुए दिल के साथ उसके करीब पहुंची और सारे लवाजमात मेज़ पर से जा दिए। लरजते बदन के साथ हालिम को नाश्ता सर्व करने लगी।
میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی پلکیں اوپر اٹھائی. دیکھا حالم بڑی توجہ سے ناشتہ کر رہا تھا. میں نے خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لی. نہ اٹھانا اور جھکانا مد مقابل سے پوشیدہ نہیں تھا. ارد گرد سے بے نیاز ناشتے میں مصروف تھا. میں کنیز بنی اس کے دائیں طرف کھڑی تھی، اگلے حکم کی منتظر. آج کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس نے میرے زخمی ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ سب کیا ہے. میں نے فرما برداری سے سر ہلا دیا اور خاموشی سے کچن میں چلی. ناشتے کی میز پر بیٹھا عالم کسی گہری سوچ میں گم مسکرا رہا تھا. یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں خوشی پھوٹ رہی تھی، انجانی سی خوشی. وہ کون تھا جو اس کا ہمدرد تھا؟ نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ بہت دیر تک وہ اس کے تصور میں گم رہی. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کون ہو تم؟ اے میرے نادیدہ ہمدرد. اسی کشمکش میں وہ ایک ہاتھ سے ناشتے کے جھوٹے برتن اٹھانے لگی. اچانک سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے میرے ہاتھ تھام لیا. اس کے بعد ہلکی سی منمناہٹ گونجی. یہ سب کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں. میں خوفزدہ ہو کر آگے پیچھے دیکھنے لگی. پھر میرے ہاتھوں سے وہ لمس چھوٹ گیا. جیسے ہی میں نے برتنوں کو دیکھا وہ پلک چپکنے سے پہلے ہی صاف ہو گئے تھے. میرے خدایا یہ کیا اصرار ہے؟ میرے منہ سے بڑبڑانے کے انداز سے نکلا. کئی منٹ گہری سوچ میں ڈوبی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر باہر نکل. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں. میں باہر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ کمرے میں جانے کے لیے مجھے حال سے گزر کر جانا تھا. میں کسی صورت عالم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی. اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میری یہاں کوئی مدد کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ اسے بھی مار دے گا. خاموشی سے کچن میں پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی اور دوپہر ہونے کا انتظار کرنے لگی. پھر نہ جانے میری آنکھ لگ گئی اور میں کافی دیر تک سوتی رہی. اچانک مجھے اپنے پاس کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی. میں بڑبڑا کر اٹھی. میرا دل حلق تک آن پہنچا. یہ کیا؟ حالم میرے کان کے قریب آ کر سرگوشی والے انداز میں بولا، جانم کیا کھانا تیار ہے؟ جو اس طرح گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو؟ میں یکدم بوکھلا گئی. میں نے تو دوپہر کے کھانے کی کوئی تیاری نہیں کی تھی. اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس کا تو اندازہ مجھے خود نہیں تھا. پتہ نہیں اب میرے لیے کون سی سزا اس نے تجویز کرنی تھی. یا اللہ رحم فرما، مجھے اس کے ظلم سے نجات دلا. میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگا. کیا کھڑی کھڑی سو گئی ہو؟ وہ دھاڑنے کے انداز میں بولا. کھانا لگاؤ، میرے مہمان بس حویلی پہنچنے والے ہیں. میں جلدی سے چولہے کے قریب پہنچی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا. اوپر دیگچیں چڑھی ہوئی تھی، کھانا تقریباً تیار تھا. ان میں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی. میں نے تمام ہانڈیاں کھول کر دیکھی. ان میں ایک سے ایک شاندار کھانا تھا جس سے ایسی خوشبوئیں اٹھ رہی تھی کہ آج تک کبھی محسوس نہیں کی تھی. میں نے جلدی سے کھانا ٹیبل پر لگایا اور صحن میں آ گئی کیونکہ مجھے اجازت نہیں تھی عالم کے علاوہ کسی اور کے سامنے آنے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی طویل خواب دیکھ. یا اللہ، یہ کیسے عنایتیں برس رہی ہیں مجھ پر. میری آنکھ جب اس سہانے خواب سے کھلے گی تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوگا. یہ خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے کام تو خود میری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں. اگر وہ میرے سامنے آ جائے مجھے ایک دم سے جھرجھری آ. پاگل تو نہیں ہو گئی کیا جو ایسا کچھ سوچ رہی ہو؟ دوپہر معمول کے مطابق گرم ہو چکی تھی. مجھے عجیب سے تنہائی کا احساس ہو رہا تھا. بے اختیار دل چاہا کہ سامنے لگے پیپل کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں جا کر بیٹھوں، لیکن اس کے ساتھ ایک ہلکا سا خوف میرے ذہن میں ابھرا. کیا پتا میرا ہمدرد وہاں موجود ہو. اسے تو معلوم ہوگا کہ حالم حویلی میں موجود ہے اور یہ بھی جانتا ہوگا کہ میرے ارد گرد ہے. حالم کو کسی کا بھی وجود برداشت نہیں. وہ چلچلاتے دھوپ میں درخت کی جانب بڑھنے لگا. دھوپ بھی اتنی شدید تھی کہ جیسے ہر چیز جھلس جائے گی. ابھی وہ چند قدم آگے ہی بڑھی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اپنی نگاہیں اوپر کی، مگر وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں تھی جیسے سایہ دار چیز کہا جا سکے. مگر ایک لمحے کے اندر اندر اس کے چہرے پر پڑنے والی دھوپ کی تپش ختم ہو گئی، یہاں تک کہ میں درخت کے پاس جا پہنچی. ایک ٹھنڈی سانس لے کر درخت کے نیچے بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی. بے شک درخت کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں بہت خوشگوار لگ رہی تھی، مگر میری طرح کوئی پاگل ہی ہو سکتا ہے جو اس چلچلاتی دھوپ میں صحن میں آ جائے. اس وقت میری نظر درخت کے دوسری طرف پڑی. کوئی درخت سے پشت لگائے منہ دوسری جانب کیے بیٹھا تھا. کون ہو سکتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا. میں درخت کے دوسری جانب بڑھی تو دیکھا کہ وہاں ایک نہایت ہی خوبرو نوجوان بیٹھا تھا. دراز قد، چمکتی سفید رنگت، نیلی روشن آنکھیں
कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम शामीर है, मेरा ताल्लुक जिन्नों के कबीले से है। एक दिन दोपहर में जब तुम सहन साफ कर रही थी तो मेरी नज़र तुम पर पड़ी, देखकर खौफजदा हो गई। तेज़ी से वापसी के लिए मुड़ी और वो अचानक से मेरे सामने आ गई। मेरा हाथ थामते हुए बोला, देखें, आप खौफजदा ना हो, मैं आपको भला क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं आपका हमदर्द हूँ, मुहाफिज हूँ। मैं हैरतज़दा निगाहों से इर्द गिर्द देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर हालिम ने मुझे उसके आसपास देख लिया तो जाने कौन सी क़यामत आ जाएगी। देखो, मैं कनीज़ हूँ, हालिम मुझे ख़रीद कर लाया है। अगर उसे ज़रा भी शक हो गया तो वो मेरे साथ तुम्हारा भी जीना हराम कर दे। मैं जानता हूँ तुम कनीज़ हो, उसने बदस्तूर नरम लहजे में जवाब दी और मेरा हाथ थामते हुए अंदर की जानिब बढ़ गया। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, क्यों मेरे दुश्मन बन रहे हो? मैंने रोते हुए कहा। वो चलते हुए यकदम रुका, मेरे करीब आकर अपनी उंगलियों के पूरों से मेरे आंसू साफ करने लगा। इस दुनिया में वाहिद मैं ही तुम्हारा हमदर्द हूँ। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सारे गम खत्म हो गए हों। मैं पूरों से मेरे आंसू साफ करने लगा। इस दुनिया में वाहिद मैं ही तुम्हारा हमदर्द हूँ। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सारे गम खत्म हो गए हों। मैं खामोशी से शामिर के पीछे चलने लगी। मुझे ये एहसास बड़ा दिल फरेब लग रहा था कि कोई है जिसको मेरी फिक्र है। वो मुझे अपने साथ लिए किचन में गया और बर्तनों में खाना निकालने लगा। मैं खामोशी से उसकी हरकत सकनात देख रही। फिर मेरे लिए मेरे कमरे में चला आया वो और बेड पर बिठाकर खुद मेरे कदमों में बैठ गया। तुम खाना खा लो, वो इस कदर लजाजत से बोला कि मैं मोम की तरह पिघल गई। बात इस अंदाज में की गई थी कि मैं उसे इनकार न कर सकी। न जाने वो कौन सा जज्बा था जिसने यकलख्त अजनबियत दूर कर दी। हानिया ने उसके हाथों से खाना खाया और इस दौरान उसे बाहर से कोई खटका सा सुनाई दिया। तो हानिया इस तरह चौंक कर चारों तरफ देखने लगी जैसे अब तक उसे ये एहसास न हुआ कि वो क्या कर रही है और कौन उसके साथ, और वो कैसे उस अजनबी के हाथों से खाना खा रही है। असुआ उसके हाथ पांव फूल गए। बस अब तुम जाओ, अगर हालिम ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरी मौत आ जाएगी। जी मुझे अंदाज़ा है, वो मुस्कुराते हुए बोला। प्लीज़ प्लीज़ तुम जाओ। हानिया बिल्कुल दहशतज़दा हो गई। मेरे हाथ से खाना खाने का शुक्रिया, ये कहकर शामिर खिड़की से गायब हो गया। चंद मिनट गुजरे, दरवाज़ा खोलकर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। ये मैं क्या कर बैठी? क्या हरकत थी? ये हिम्मत मेरे अंदर कहाँ से आ गई? उसने सोचा और बेसुध होकर बेड पर गिर गई। मुझे क्या हो गया था? आखिर मेरे लिए तो वो अजनबी है, मेरी तो उससे एक से ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई और वो मुझे अपने साथ कमरे में ले आया और अपने हाथों से खाना भी खिला गया। लेकिन उसके ख्याल पर दिल ने पुकार कर कहा, वो अजनबी नहीं है। ज़हन अजीब सी कश्मकश में मुब्तला था, लेकिन उसकी सोच की अनोखी सी लज्जत थी जो शायद उसने अशर के लिए कभी महसूस नहीं की थी। न जाने कितना वक्त गुजर गया जब दूर नहीं थे। हानिया हांफती कांपती किचन में पहुंची तो देखा ट्रॉली पर हर चीज़ सजी हुई थी। अम्मा चूल्हे के पास खड़ी चाय बना रही थी। मैं अम्मा के करीब गई और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शुक्रिया, आज आपने मुझे बचा लिया। अम्मा ने रुख मोड़ कर मेरी जानिब देखा और बोली, क्या बात है हानिया, आज तुम इतनी खुश नज़र आ रही हो? कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। कहीं अम्मा को शामिर के बारे में तो नहीं पता चल गया? मैंने डरते हुए अपने दिल में सोचा। चलो ठीक है, अल्लाह तुम्हें इससे ज़्यादा खुश रखे। पता नहीं क्यों तुझ में मुझे बेटी नज़र आती है अपनी, और मेरे साथ खड़े खड़े ऐसी ही बात करती रहोगी या चाय भी लेकर जाओगी? इसी तरह दिन गुजरता गया और शाम से रात हो गई। ये रात अब तक की तमाम रातों से मुख्तलिफ थी। उसके जहन में बार बार शामिर का चेहरा आ जाता। शामिर के अंदाज में कितनी अपनाइत थी, कितनी मोहब्बत से बात कर रहा था, कितना खूबसूरत नौजवान था, बेहतरीन जिसामत का मालिक। अभी वो उसी के बारे के अंदाज में कितनी अपनाइत थी, कितनी मोहब्बत से बात कर रहा था, कितना खूबसूरत नौजवान था, बेहतरीन जिसामत का मालिक। अभी वो उसी के बारे में सोच रही थी कि पीछे से किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा तो शामिर खड़ा मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, क्या मेरा इंतज़ार कर रही थी? नहीं नहीं, मैं तो बस सोने वाली थी, मैंने अपनी घबराहट छुपाते हुए जवाब दिया। फिर मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोला, मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, आपको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहता हूँ। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके अंदाज ने शामिर को समझा दिया। इस दुनिया में शामिर के अलावा उसका कोई नहीं। उसकी तन्हाइयाँ शामिर की तरफ तसव्वुर से मुनव्वर हैं, लेकिन
तन्हाई में जब भी वो उसे सोचती तो बदहवास हो जाती। आखिर वो शामिर की ज़िंदगी में कैसे दाखिल हो सकती है? वो एक इंसान है जबकि शामिर एक जिनज़ादा है। सबसे बड़ी बात ये कि वो आलिम की कनीज़ है। हानिया, मोहब्बत एक तरफा तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दे, मैं वापस अपनी दुनिया में लौट जाऊंगा। हानिया ने शफाफ मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया। तो बेहतर है शामिर, तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ, क्योंकि मेरा और तुम्हारा मिलन नामुमकिन है। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि आप क्या चाहती हैं, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, मगर तुम्हें खोने से डरती हूँ। फिर शामिर ने आगे बढ़ते उसका सर अपने चौड़े सीने में भींचा। उसके होंठों पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट फैल गई। न जाने फिर कितनी देर एक दूसरे से बातें कर मैं इसी तरह शामिर के कंधे पर सर रखकर सो गई। अगली सुबह जब मैं बेदार हुई तो देखा कि मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी और मेरे हाथों में मोतिये के खूबसूरत गजरे थे। मैं गजरे उतार रही थी कि मुझे बाहर से किसी के कदमों की चाप सुनाई थी। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? कहीं हालिम तो नहीं है? या अल्लाह, मैं क्या करूं? दस्तक हुई, मेरा सांस सीने में अटक गया। मैं जोर जोर से हाँफने लगी। दरवाज़ा खोलो हानिया। जल्दी से अपना बाजू दुपट्टे की ओर किया और दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर वो धाड़ने वाली आवाज़ में बोला, बहरी हो गई थी जो दरवाजे की दस्तक सुनाई नहीं दे रही थी? वो मैं नींद में थी, मुझे पता नहीं चला। फिर वो कमरे के अंदर आ गया और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। ये तुम्हारे कमरे से कैसी खुशबू आ रही है? मैंने करीब रुककर रुकते हुए पूछा। मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही, मैंने घबराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। उसने एकदम दुपट्टे के पीछे से मेरा हाथ निकाल कर सामने किया और पूछने लगा, ये सुबह सुबह तुम्हारे पास कहाँ से आए? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हवेली में मोतिये का कोई भी पौधा मौजूद नहीं है। कौन लाया ये तुम्हारे लिए? कौन आता है तुम्हारे कमरे में? एकदम से मेरे बालों को खींच कर चेहरे के करीब लाते पूछा। पता नहीं, मैं नहीं जानती। काफ़ी दिन से मेरे साथ अजीब से वाक़यात हो रहे हैं। उसने शामिर का जिक्र जानबूझकर गोल कर दिया, कहीं आलिम उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। और अब ये मोतिये के गजरे? मैंने रोते हुए जवाब दिया, अगर तुम्हारा इसमें ज़रा सा भी कसूर हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहते हुए आलिम ने मुझे इस कदर ज़ोर से धक्का दिया कि मेरा सर दीवार से टकरा गया और मेरे माथे से यकलख्त खून निकल आया। हानिया का खून देख कर आलिम बदहवास हो गया। हानिया मेरी जान, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं था। ये कहते ही आलिम कमरे से निकल गया। हानिया एकदम चौंकी क्योंकि आलिम और शामिर की आवाज़ यकसां थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा शामिर तो बहुत रहमदिल है और हालिम उतना ही जालिम। भला हालिम और शामिर एक कैसे हो सकता है? उस लम्हे अम्मा भी कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में मरहम पट्टी का सामान था जिन्हें शायद हालिम ने भेजा था। अम्मा किसी माहिराना पेशेवर की तरह मरहम पट्टी करने लगी और आराम की ताकीद करते कमरे से चली। मैं बदस्तूर उसी हालत में बैठी रही जिस हालत में मुझे अम्मा और हालिम छोड़ कर गए थे। इसी तरह सुबह से उसी हालत में बैठी रही जिस हालत में मुझे अम्मा और हालिम छोड़ कर गए थे। इसी तरह सुबह से शाम हो गई, कुछ खाए पिए बिना अपने कमरे में रहे। मुझे वक्त गुजरने का एहसास, और ना ही आज शामिर मेरे सामने आया और ना ही हालिम ने मुझे दोबारा बुलवाया। रात में अपने कमरे में मौजूद थी तो मुझे अचानक से भूख का एहसास हुआ। कल से मैं भूखी प्यासी लेटी थी। अपने चकराते सर को थामते हुए हिम्मत करके उठी और किचन की जानिब चली गई। हवेली के चारों तरफ सन्नाटा था। मौसम के तेवर भी ठीक नहीं थे। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जैसे ही मैं अपने लिए खाना निकाल रही थी तो मुझे खिड़की से शोर सुनाई दिया, जैसे शहनाइयाँ बज रही हों। मैंने तजस्सुस के मारे खाना वहीं छोड़ा और किचन से निकल आई और पिछले हिस्से की जानिब चल दी जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही सहन में पहुंची तो वहाँ भड़कीले लिबास में मौजूद औरतें, बने सवरे मर्दों को देखकर मैं हैरान रह गई, जो यूं खुशबाश लग रहे थे जैसे कोई जश्न मना रहे हों। मैं खौफजदा हो गई क्योंकि ये हवेली हालिम की थी और हालिम की मौजूदगी के बगैर ऐसे जश्न का मना। मैं हालिम को ढूंढ रही थी। मुझे यकीन था कि वो भी ज़रूर इस जश्न में शरीक होगा। न जाने ये कैसी तकरीब है जो हवेली में इतना रश लगा हुआ है। थोड़ी देर में मुझे मर्दों के चुरमट में हालिम नजर आया। उसने लंबा चूगा नमा लिबास ज़ेब तन किया था। मैंने कभी उसे स्याह शलवार कमीज़ के अलावा इस तरह के लिबास में नहीं देखा था। और तो अम्मा भी उस जश्न में आलिम के साथ शरीक थी। अम्मा भी मेरे पास आई तो मैंने उनसे सवाल किया, अम्मा ये सब जश्न किस लिए है? ये आलिम के रिश्तेदार और आज खुशी के मौके पर उन्हें बुलाया है। अगर तुम भी हमारी खुशी में शरीक होना चाहो तो। मुझे वो सब शक्लों से बड़े अजीब लग रहे थे। मैं उनके साथ जश्न में शामिल नहीं हुई। दूर खड़ी सहमती उनके कदमों की आवाज़ सुनती रही। फिर मुझे लजीज खानों की खुशबू महसूस होने लगी।
خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جی چاہ رہا تھا کہ اب بھی بھاگ جاؤں۔ میری نظریں ان کے پکے ہوئے پکوانوں پر پڑی۔ وہاں جانوروں کے پورے سر رکھے ہوئے تھے، جیسے خوب آگ پر پکایا گیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ابکائی سی آ گئی۔ جب حالم کی نظر مجھ پر پڑی تو میں بدحواس ہو کر حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بھاگی، جیسے حالم میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر زور سے سانس لینے لگی۔ وہ کون لوگ تھے؟ اماں اور حالم ان کے ساتھ کس قسم کا جشن منا رہے تھے؟ میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی حویلی سے بھاگ جاؤں، نہ جانے میں کن لوگوں میں پھنس گئی ہوں۔ شامیر بھی پچھلے 2 دن سے غائب تھا۔ اللہ میں کہاں جاؤں؟ میں تو واپس اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے گھر والوں نے یونیورسٹی سے غائب ہونے کے 1 دن بعد عیدی سینٹر سے کسی لڑکی کی لاش لے کر یہ کہہ کر دفنا دیا تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں میری جان چلی گئی۔ ایکسیڈنٹ اس شدید نوعیت کا تھا کہ میرا چہرہ ناقابل شناخت ہو گیا۔ گھر والوں نے تو دنیا کے سامنے مجھے مردہ قرار دیا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں میں جا سکتی۔ ساری رات کمرے میں بے چینی سے ٹہلتی رہی۔ جت کا وقت ہوا میں نے وضو کیا اور نماز کی نیت سے کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں جائے نماز پر بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور حالم کمرے میں داخل ہوا۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا اور گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ ڈرتے سہمتے ہوئے حالم کی طرف دیکھا، جس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے جوڑے تھے۔ کبھی حالم کو دیکھتی اور کبھی اس کے ہاتھوں کو۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں۔ میں ظالم حالم نہیں بلکہ تمہارا شامیر ہوں۔ جیسے ہی میں نے حالم کے منہ سے شامیر کا نام سنا، میرا دل دھڑک سا گیا۔ میں ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھے وہ حالم سے شامیر کے روپ میں آیا۔ یہ دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ تم؟ حالم نہیں، تم تو شامیر ہو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ایک طرف تم مجھ پر ظلم کرتے، دوسری طرف میرے ہمدرد بن کر زخموں پر مرہم لگاتے۔ ایک طرف میرے دل میں شامیر کی شکل میں محبت پیدا کی، جبکہ دوسری طرف میرے دل میں حالم ہمدرد بن کر زخموں پر مرہم لگاتے۔ ایک طرف میرے دل میں شامیر کی شکل میں محبت پیدا کی، جبکہ دوسری طرف میرے دل میں حالم کی شکل میں نفرت پیدا کی۔ مجھے تمہارے پاس نہیں رہنا، خدا کے لیے یہاں سے جانے دو۔ میں روتے چیختے چلاتے کہنے لگی، کہاں جاؤ گی؟ کون ہے تمہارا اس دنیا میں؟ ماں باپ تھے جو تمہیں پہلے ہی مردہ قرار دے کر دفنا چکے ہیں۔ اس کے بعد اشر جیسے لوگ ملیں گے جو تمہارا جسم نوچ کر کھا جائیں گے۔ میں تمہیں کسی اور کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا۔ جنزادے نے کہتے ہوئے اپنا سر میری گود میں رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ میرے آنسو شامیر کا اور حالم کا چہرہ بھگوتے رہے۔ اس کے آنسو میری گود میں گرتے رہے۔ لگ رہا تھا جیسے ہم صدیوں کے مسافروں اور دونوں کو منزل مل گئی ہو۔ کافی دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، کیا تمہارے سارے گھر والے ادھر ہی رہتے ہیں؟ اس نے بدستور آنکھیں بند کی تھی اور بولا، نہیں، وہ سب رشتہ دار ہیں، والدین نہیں ہیں، بلکہ میرے جیسے ہی لوگ ہیں۔ میرے والدین کو ان کے چچا زاد بھائی نے مار دیا تھا۔ اپنے والدین کا بدلہ لینے کے بعد میں انسانوں کی دنیا میں آ گیا۔ یہاں میری ملاقات اماں سے ہوئی۔ وہ مجھے سڑک پر روتی ہوئی ملی تھی۔ جب میں نے رونے کی وجہ معلوم کی تو پتہ چلا ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کے سسرال والوں نے چند پیسوں کے عوض اسے کوٹھے پر بھیج دیا۔ وہاں اس نے اپنی عزت کی خاطر خودکشی کر لی۔ میں اماں بھی کو اپنے ساتھ حویلی لے آیا اور باقاعدگی سے تمنا بیگم کے کوٹھے پر جانا شروع کر دیا۔ وہاں سے لڑکیاں خرید کر اپنی حویلی میں لاتا، اماں بھی کے ساتھ مل کر ان کی شادی اچھے خاندان میں کرواتا۔ اس روز جب تمہیں میرے سامنے لایا گیا تو پتہ نہیں کیوں مجھے تمہارا اس طرح سامنے آنا اچھا نہیں لگا۔ میں وہیں سے تمہیں خرید کر حویلی لایا۔ جب بھی مجھے نظر آتی تم میرے دل میں عزت کی آگ بھڑک اٹھتی، جس کو بجھانے کے لیے میں تمہیں اذیت دیتا، مگر میرے دل کو تسلی نہ ملتی۔ پھر میں نے شامیر کی شکل میں تم سے ملنا شروع کیا۔ جب سے میں تمہارے پاس آتا تو ایک عجیب سکون ملتا۔ مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ جب تم نے شامیر سے اظہار محبت کیا میرے دل میں جلن ہوئی۔ پھر میں نے تمہیں یہ تکلیف دی، اس انداز میں کہا۔ یہ سن کر شامیر کا رنگ یکدم سے فک ہو گیا۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ ہاں، میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں تم سے ملنے آتی رہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہی وہ پریشانی کے عالم میں کمرے سے چلا گیا۔ اب تمہاری باری ہے شامیر، میں نے اپنے آپ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح میں اپنے گھر جانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اماں بھی دروازے پر دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ہانیہ بیٹی، حالم صاحب آپ کو ناشتے کی ٹیبل پر بلا رہے ہیں۔ میں خوشی کے مارے اماں بی کے گلے لگ گئی اور انہیں بتایا کہ حالم آج مجھے میرے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے اداس ہو گئی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بیٹی، جاؤ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پر بیٹی میری ایک بات ذہن میں رکھنا،
हालिम और हवेली को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं अम्मा की बात सुनकर हैरान हो गई। भला जिनजात को मेरी ज़रूरत कैसे पड़ सकती है? अम्मा भी, जब उन्हें मालूम होगा कि हालिम जिनजात है तो खौफ के मारे खुद ही भाग जाएंगी। मैं तैयार होकर अम्मा भी जब उन्हें मालूम होगा कि हालिम जिनजात है तो खौफ के मारे खुद ही भाग जाएंगी। मैं तैयार होकर अम्मा बी के साथ नाश्ते की टेबल पर आई, जहाँ हालिम पहले इंतज़ार में बैठा किसी गहरी सोच में था। एकदम से उठा और मेरे पास आया, कहने लगा, तुम वाकई जाना चाहती हो? मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया, हाँ, मैं चाहूँ तो अपनी ताकत के ज़ोर पर तुम्हें यहाँ रख सकता हूँ, मगर अब तुम्हारे साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं वह हर काम करूँगा जिसमें तुम्हारी खुशी होगी। नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। अब मैं नाश्ता अपने घर वालों के साथ करूँगी। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए हालिम बाहर निकल गया। अपने पास खड़ी अम्मा बी से मिलते हुए मैं जल्दी से बाहर आ गई, जहाँ वो गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहा था। तुम गाड़ी से ही आते जाते हो? मैंने बैठते हुए सवाल किया। ये सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, सिर्फ तुम ही जानती हो कि मैं इंसान नहीं हूँ, जिन्न हूँ। बाकी दुनिया वालों के सामने इंसान ही हूँ। इंसानों की तरह खाता पीता सोता जागता हूँ। इंसानों की तरह खाता पीता सोता जागता हूँ। अचानक से मेरा सर खुद बहुत सीट की पोस्ट से लगा। मुझ पर मदोशी तारी हो गई। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं हैरान रह गई। गाड़ी बिल्कुल मेरे घर के सामने खड़ी थी। मैंने जल्दी से हालिम की दी हुई चादर से चेहरे पर नकाब किया और बाहर निकलने लगी। क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर के अंदर जाऊं? हाँ। जिस पर वह हल्का सा मुस्कुराया। तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, मैंने मोहब्बत से कहा। चलो अंदर। क्यों मुझे अपने इरादे से हटा रही हो ऐसी बातें करके? ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं। यहाँ कौन रहना चाहता है? हानिया ने सरगोशी वाले अंदाज। कुछ कह रही हो? नहीं, कुछ नहीं। ये कहते हुए वो घर में दाखिल हुई। जैसे ही हम ड्राइंग रूम में दाखिल हुए, मामा और बाबा सामने सोफे पर बैठे थे। बाबा चाय पीने के साथ अखबार पढ़ रहे थे। मामा किसी गहरी सोच में गुम थे। दोनों भाई शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी चले गए थे। मामा, बाबा। मैंने दरवाजे पर रुकते ही उन्हें पुकारा। मेरी आवाज़ सुन तरफ देखते हुए बोली, ये कौन है? ये हालिम है जिन्होंने मेरी मदद की। इन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी। मैं अपने साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में बताती गई। मैंने सारी बातें मामा और बाबा को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद बाबा बोले, बेटा, दुनिया की नज़र में तो तुम मर चुकी हो। अब अगर सबके सामने इस तरह जिंदा होगी तो दुनिया को एक दफ़ा फिर मौका मिल जाएगा हमारी ज़ात पर कीचड़ उछालने का। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे निकाह करके अपने साथ ले जाओ। वो आलिम की तरफ देखते हुए बोले, हमारे इत्मीनान के लिए यही काफ़ी है कि तुम जिंदा हो। मैं हैरानगी से कभी आलिम को देखती, कभी माँ बाप को। फिर मैंने वालिदैन की खातिर आलिम से निकाह किया और हवेली वापस आ गई। मैं दुनिया की नज़र में तो आलिम की बीवी थी, लेकिन हकीकत में उसकी कनीज़ थी। एक ऐसी कनीज़ जिसका मालिक उसके इशारे पर सारी दुनिया को उसके कदमों में रख दे। मैं उससे मोहब्बत नहीं करती बल्कि इश्क करती हूँ। इंसान की मोहब्बत तो धोखा दे सकती है, मगर एक जिनजात से इश्क कभी भी आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। 4 बजने वाले हैं। और इस वक्त उसकी कनीज़ वक्त पर चाय लेकर ना पहुंची तो फिर वह अपनी कनीज़ को मीठी सी सजा देगा, और ऐसी सजाओं से आलिम की कनीज़ गुलाब की तरह